اگر دنیا ایک مشین ہے تو الگورتھم اس مشین کا دماغ جو ہر فیصلے کے پیچھے کام کرتا ہے۔ آج موبائل، یوٹیوب، گوگل اور سوشل میڈیا ہمیں جو کچھ دکھاتے ہیں اس کے پیچھے ایک طاقتور راز چھپا ہے، الگورتھم۔ ہم روزانہ سینکڑوں بار الگورتھم استعمال کرتے ہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔ الگورتھم دراصل ہدایات یا مراحل کا ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے جو کسی مسئلے کو حل کرنے یا کسی کام کو مکمل کرنے کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر، موبائل ایپ، سرچ انجن اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم سب الگورتھم کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوٹیوب آپ کو وہی ویڈیو دکھاتا ہے جو آپ کی دلچسپی کے مطابق ہوں، جبکہ گوگل سینکڑوں میں لاکھوں ویب سائٹس میں سے بہترین جواب تلاش کرتا ہے۔ جدید دور میں مصنوعی ذہانت، آن لائن بینکنگ، حتیٰ کہ ٹریفک کنٹرول سسٹم بھی الگورتھم کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں۔ آسان الفاظ میں الگورتھم وہ خفیہ نظام ہے جو ٹیکنالوجی کو ذہین اور تیز بناتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر ظفر ہسٹری انفورڈ سے۔ الگورتھم کیا ہے؟ ہر چیز کی بنیاد ہماری ڈیجیٹل دنیا کا ہر عمل، ہر سافٹ ویئر، ہر موبائل ایپ اور ہر ویب سائٹ کا ایک بنیادی اصول پر چلتی ہے جسے الگورتھم کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں الگورتھم کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مرتب اور مرحلہ وار ہدایات کا ایک سیٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک ریسپی یا نسخہ کی طرح کام کرتا ہے جس پر عمل کر کے کمپیوٹر مطلوبہ نتائج پیدا کرتے ہیں۔ ایک عام مثال لے لیجیے، چائے بنانے کا طریقہ۔ اگر ہم اسے مرحلے میں لکھیں: پانی ابالیں، کپ میں چائے پتی ڈالیں، ابلتا پانی ڈالیں، چند منٹ انتظار کریں، چینی یا دودھ ڈال کر ملا دیں۔ یہ مراحل دراصل چائے بنانے کا الگورتھم ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کو کوئی کام سمجھانے کے لیے ہم الگورتھم استعمال کرتے ہیں۔ الگورتھم کی خصوصیات: ایک اچھے اور مؤثر الگورتھم میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے: واضح اور قطعی ہدایات، ہر مرحلہ مبہم نہیں بلکہ صاف اور قابل عمل ہو، محدود ان پٹس، یہ واضح ہو کہ الگورتھم کو کون سی معلومات درکار ہیں، محدود آؤٹ پٹس، یہ بھی واضح ہو کہ ہمیں آخر میں کیا نتیجہ چاہیے، فعالیت، یہ ضروری مراحل پر مشتمل ہو اور غیر ضروری کام نہ کرے، محدود مدت، کام کو ایک مناسب وقت میں مکمل کر سکے، لامتناہی لوم میں نہ پھنسا دے، عام قابل اطلاق، ایک ہی طرح کے مسائل کے گروپ پر کام کر سکے۔ اگر الگورتھم کیسے کام کرتا ہے، ہم ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ کسی فہرست میں سب سے بڑا نمبر ڈھونڈنے کا الگورتھم فرض کریں ہمارے پاس یہ نمبر ہیں: 17، 5، 23، 9 اور 42۔ شروع کریں کہ فہرست کا پہلا نمبر 17 لیں، اسے فی الحال سب سے بڑا نمبر مان لیں۔ اگلا نمبر 5 دیکھیں، موازنہ کریں کیا نمبر 5 موجود سب سے بڑے نمبر 17 سے بڑا ہے۔ اگر نہیں تو کچھ نہ کریں، موجودہ سب سے بڑا نمبر 17 ہی رہے گا۔ اگر ہاں تو نیا نمبر ہی اب سب سے بڑا نمبر بن جائے گا۔ اس مرحلے پر 5 17 سے چھوٹا ہے تو سب سے بڑا نمبر 17 ہی رہے گا۔ پھر اس کا اگلا نمبر 23 لیں، موازنہ کریں، 23 بڑا ہے لہذا اب سب سے بڑا نمبر 23 ہو گیا۔ اب اس کو دوبارہ دہرائیں، پھر اس کا اگلا نمبر 9 لیں، موازنہ کریں، 9 چھوٹا ہے تو سب سے بڑا نمبر 23 ہی رہے گا۔ پھر دیکھیں، پھر اس کا اگلا نمبر 42 لیں، موازنہ کریں، 42 بڑا ہے تو اب سب سے بڑا نمبر 42 ہو گیا۔ اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، جب فہرست ختم ہو جائے تو موجودہ سب سے بڑا نمبر 42 ہی مطلوبہ جواب ہے۔ یہ سارے مراحل ایک الگورتھم ہے جسے کوڈ کی صورت میں لکھ کر کمپیوٹر کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ الگورتھم کی اقسام اور مثالوں کی بات کریں، الگورتھم کی دنیا بہت وسیع ہے۔ چند مشہور اقسام یہ ہیں: سرچ الگورتھم، کسی ڈیٹا میں مخصوص چیز ڈھونڈنے کے لیے۔ لینئر سرچ، ایک ایک کر کے ہر چیز کو دیکھنا، جیسے فون بک میں نام دیکھنا۔ بائنری سرچ، ڈیٹا کو بار بار ادا کرتے ہوئے تلاش کرنا، بہت تیز ہوتا ہے لیکن ڈیٹا پہلے سے ترتیب شدہ ہونا چاہیے۔ سورٹ الگورتھم، ڈیٹا کو ترتیب دینے کے لیے ببل سورٹ کرنا، قریب والی چیزوں کو موازنہ کرتے ہوئے ترتیب دینا۔ مرج سورٹ، ڈیٹا کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے الگ ترتیب دینا پھر انہیں ملا دینا۔ روزمرہ کی زندگی میں الگورتھم کے استعمال کی بات کریں، گوگل سرچ، آپ کا سوال لے کر اربوں ویب صفحات میں سے متعلقہ نتائج ڈھونڈنا۔ جی پی ایس نیویگیشن، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا تیز ترین یا آسان ترین راستہ تلاش کرنا۔ سوشل میڈیا فیڈ،
फेस बुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर आप कौन सी पोस्टें दिखाई जाए, ये तय करने के सीधा एल्गोरिथम इस्तेमाल होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की सिफारिश करना, अमेजोन या अली एक्सप्रेस जैसी साइट्स आपकी दिलचस्पी के मुताबिक मसनूआत दिखाने के लिए एल्गोरिथम इस्तेमाल करती हैं। एल्गोरिथम कैसे लिखे जाते हैं? एल्गोरिथम आमतौर पर 3 तरीकों से ज़ाहिर किए जाते हैं आम ज़ुबान में, जैसे ऊपर चाय वाली मिसाल। फ्लो चार्ट के जरिए मुख्तलिफ शक्लों और तीरों के जरिए मरहल की नुमाइश करना। एक खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखकर रखते हैं, यही वह शक्ल है जो आखिर में कंप्यूटर समझता और चलाता है। मशहूर तरीकी एल्गोरिथम की अगर बात करें, यूक्लिड का एल्गोरिथम 2 दिनों का सबसे बड़ा मुश्तरका तकसीम का मालूम करने का तरीका, जो तकरीबन 2300 साल पुराना तरीका है। ये रियादी की तारीख में सबसे पहले जाने जाने वाले एल्गोरिथम में से एक है। खतरात और सियासतों की अगर बात करें, अगरचे एल्गोरिथम ने हमारी ज़िंदगी आसान बनाते हैं, लेकिन इनके कुछ मनफी पहलू भी हैं। तो सब पैदा हो सकता है। अगर एल्गोरिथम को जो डेटा सिखाया गया है वो जानबदार है, तो इसके नतीजे भी जानबदार होंगे। एल्गोरिथम में तब्दीली, एल्गोरिथम में नस्ली या जिनसी तौर पैदा किया जा सकता है। शख्सी राजदारी, हमारे डेटा का तजिया करके हमारी आदत, ख्यालात और रुझानात मालूम किए जा सकते हैं। इंसार बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम पर इंसानी फैसला साजी की सलाहियत को कमज़ोर कर सकता है। फ्यूचर में एल्गोरिथम के किरदार की बात करें, मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग दरहकीकत सेल्फ इम्प्रूविंग एल्गोरिथम ही हैं। सिर्फ हदायत पर अमल नहीं करते, बल्कि डेटा से सीख कर आपको बेहतर बना सकते हैं। फ्यूचर में खुदकार गाड़ियाँ और हर शोबे में फैसला साजी में इनका किरदार और भी अहम हो जाएगा। एल्गोरिथम एक बुनियादी तस्वर है जो न सिर्फ कंप्यूटर साइंस बल्कि हमारे रोज़मर्रा के मंतकी फैसलों को भी अक्कासी करता है। ये हमें ये सिखाता है कि किसी भी पेचीदा मसले को छोटे, आसान और मरहलावार हिस्सों में तकसीम करके उसे कैसे हल किया जा सकता है। डिजिटल दौर में एल्गोरिथम को समझना मेरे प्रोग्रामर्स के लिए नहीं, बल्कि हर तालीम याफ्ता फ़र्द के लिए ज़रूरी होता जा रहा है, ताकि उस दुनिया को समझ सके जो तेज़ी से इन्हीं एल्गोरिथम के गिर्द घूम रही है। अमेरिका चीन के दरमियान मुकाबले का जायजा लेते हैं। चीन का तकनीकी अरूज आदोशुमार से सबूत की अगर बात करें, हालिया तहकीकात की रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन मुतअद्दिद अहम टेक्नोलॉजी शोबे में अमेरिका से बहुत आगे निकल गया है। अहम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़रा सबक हासिल कर चुका है। एक जामे मुताले के मुताबिक 64 में से 57 अहम टेक्नोलॉजी मसनूई ज़हानत रोबोटिक्स में चीन सरफहरिस्त है। आला 3 मेयार के इल्मी तहकीकी मज़ामीन के हवाले से भी चीन 8वीं अहम टेक्नोलॉजी डोमेन में अमेरिका से आगे है। चीन के इम्दानों में बढ़ती की मिसालें हैं। हाइपरसोनिक डिटेक्शन चीन का एक हिस्सा अमेरिका से 60% ज़्यादा है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग चीन का हिस्सा अमेरिका से 56% ज़्यादा है। तवानाई और मालियात के हवाले से देखें, चीन का हिस्सा अमेरिका से 36% ज़्यादा है। अमेरिका बढ़तरी के मजदूर शोबे हैं। अमेरिका अब भी चंद मखसूस शोबों में अपनी बढ़तरी बरकरार रखे हुए है, जैसे वैक्सीन, तिब्बी इक़दामात, क्वांटम कंप्यूटिंग, एटॉमिक घड़ियाँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तरक्की के असबाब और हिकमत अमली के हवाले से देखें, चीन इस रफ्तार तरक्की के पीछे तवील मजदी और मजबूत हिकमत अमली कार फरमा है। हुकूमती सरमायाकारी और पॉलिसी का अमल दखल है। कई दहाइयों से तालीम, तहकीक और तरक्की पर भारी सरमायाकारी करता है। टारगेटेड सनती पॉलिसियाँ चीन हुकूमती सब्सिडीज, अकेडमिया, इंडस्ट्री और फौज के दरमियान मजबूत वाबत हैं। टैलेंट की बढ़ती करता है। 1000 टैलेंट प्लान जैसे प्रोग्राम के जरिए गैर मुल्की तालीम याफ्ता माहिरीन को राकब करता है। मुआशी बुनियादें मजबूत हैं। एक वसी घरेलू मंडी, आला बचत की शरह जो जिद्दत और कारोबारी सरगर्मियों को ईंधन फराहम करती है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी में डिग्रियाँ देने वाला सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका से 4 गुना ज़्यादा डिग्रियाँ देता है। एक मुतहर्रिक डिजिटल मईशत जो चीन की GDP का तकरीबन 30% है। अमरीकी रद्द-ए-अमल और चैलेंज की बात करें, इस मुकाबले को अमेरिका में संजीदगी से लिया जा रहा है। तजियाकारों ने अमेरिका को मशवरा दिया है कि वह तहकीक बजट में इजाफा करे, सरकारी निजी शराकतदारियों को मजबूत बनाए
चीन की अख्तराई हिकमत अमली के बाद पहलुओं पर गौर करें। चीन की तरक्की के मतलब मज़ीद मालूमात की अगर बात करें, चीन की हालिया तरक्की के बारे में आपको बताते हैं कि चीन हालिया माशी तरक्की 2025-2026 में GDP की तरक्की 5% थी, जबकि उसने 4.8% हासिल की है। बुनियादी चैलेंजेस: जायदाद के शोबे की तवील मुद्दती कमी, कम घरेलू खपत, फ्यूचर की तरजीहात। चीन के नए 15वें 5 साला मनसूबा पर मरकूज है, 2026 से 2030 की मुद्दत के दरमियान है। अगली नस्लों की सनतों जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायो मैन्युफैक्चरिंग और हाइड्रोजन एनर्जी के पर तवज्जो दे रहा है। मसनूई ज़हानत और सनती जिद्दर के गहरे इंतजाम पर उसकी तवज्जो मरकूज है। मजमूई तौर पर दस्तयाब डेटा जाहिर करता है कि चीन मखसूस टेक्नोलॉजी शोबों में एक आलमी लीडर के तौर पर उभरा है, जो बुनियादी तौर पर इसकी जामे हिकमत अमली सरमायाकारी का नतीजा है। अमेरिका अभी भी कुछ कलीदी इलाकों में मुकाबला कर रहा है, लेकिन अमूमी रुझान चीन के हक में है। चीन की हैरत अंगेज तरक्की, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक बहुत पीछे रह गए हैं। सरमायाकारी, तवील मुद्दती मनसूबाबंदी और अमली इक़दामात का नतीजा है। इस तरक्की के पीछे चीन की तालीम और तहकीक में भारी सरमायाकारी, जदीद सनतों में छलांग और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में खुदअंसारी का अज़म है। तालीम उसकी तरक्की की बुनियाद है। चीन की कामयाबी की बुनियाद उसका आलमी सतह का सबसे बड़ा तलीमी निज़ाम है। इस निज़ाम की नुमाया खसूसियात ये हैं: लाजमी तालीम, 9 साला मुफ्त और लाजमी तालीम, हुकूमत इसकी लागत खुद बर्दाश्त करती है। अला शरह ख्वानदगी, 96.7% शरह ख्वानदगी है। फ्यूचर के मनसूबे: नए 15वें मनसूबा में मुफ्त तालीम के दायरा कार को बढ़ाने और स्कूल छोड़ने वालों की शरह कम करने पर तवज्जो दे रहा है। स्टेम पर जोर: चीन अमेरिका के मुकाबले में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी में 4 गुना ज़्यादा डिग्रियां देता है, जो जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की की राह हमवार करता है। टेक्नोलॉजी में आलमी बढ़तरी का अगर जायजा लें, एक जामे तजिए के मुताबिक 64 अहम टेक्नोलॉजी सामन में चीन अमेरिका से आगे है। इनमें नुमाया बढ़ती रखने वाले शोबे हाइपरसोनिक डिटेक्शन चीन का हिस्सा। अमली शोबों में तरक्की की बात करें, जोड़ी तवानाई इसकी मिसाल है। चीन की तरक्की सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की तजारती पैदावार में भी नजर आती है। जोड़ी तवानाई इसकी मिसाल है। दुनिया का पहला हाइब्रिड न्यूक्लियर प्लांट तो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के इम्तजाज वाला प्लांट बना रहा है, जो 2032 तक फाल होने का मंसूबा है। तेज और कम लागत की तमीर: चीन ने 33 नए जोड़ी मंसूबों पर काम शुरू कर रखा है और कम वक्त लागत में जदीद रिएक्टर तैयार कर रहा है। रिएक्टर चीन की अपनी तैयार करदा जदीद टेक्नोलॉजी है, जो पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क भी बरामद की जा रही है। फिर मुद्दती महफूज ऑपरेशन है। फोचिंग प्लांट का एक यूनिट मुसलसल 1000 दिन से ज्यादा अरसे तक महफूज ऑपरेशन का रिकॉर्ड कायम कर चुका है। चीन की शानदार तरक्की के पीछे एक वादे हिकमत अमली है। उन्होंने 3 मुद्दती मनसूबाबंदी के तहत अपने लोगों में सरमायाकारी की, फिर तहकीक और तरक्की पर वसाइल लगाए, जदीद टेक्नोलॉजी में खुदअंसारी के साथ साथ दुनिया में इनकी बराबर को फरोग दे रहे हैं। इस अमल में चीन के मुतअद्दिद कलीदी टेक्नोलॉजी में अमेरिका से भी दूसरे ममालिक को नुमाया फासले पर छोड़ दिया है। चीन टेक्नोलॉजी में क्या दर करता है? चीन मसनूई ज़हानत, कम्युनिकेशन, हाई स्पीड रेल, काबिल तजदीद 5G, 6G, तवानाई और खलाई तहकीक जैसे शोबों में आलमी रहनुमा बन चुका है। मुआशी इस्तेहकाम है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत होने के नाते चीन ने लाखों लोगों को गुर्बत से निकाला और एक मजबूत दरमियानी तबका पैदा किया। चीन के मुस्तकबिल, ख्वाब और फिक्र: चीन का फ्यूचर रोशन नजर आता है। मुल्क की 15वीं 5 साला मनसूबा आला मेयार की तरक्की पर मरकूज है, जिसमें जदीद सनतों, ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को तरजीह दी जा रही है। चीन का हदफ एक जदीद माहौलदोत और खुशहाल माशरा तमीर करना है। आने वाले वक्त में दुनिया पर वही लोग हुक्मरानी करेंगे जो एल्गोरिथम को समझेंगे और उन्हें इस्तेमाल करना जानेंगे। एल्गोरिथम सिर्फ कंप्यूटर की ज़बान नहीं बल्कि फ्यूचर की ताकत बन चुका है। आज की डिजिटल दुनिया में एल्गोरिथम को समझना फ्यूचर को समझने के बराबर है।